Good afternoon, people. Welcome back. We were doing electrostatic potential and capacitance, and चार lecture हो गए हैं, and till the last lecture, JEE के भी दो lectures हो गए. I'm sure you've seen them. Till the last lecture, we dealt with potential due to single charge, potential difference due to shell. Then we saw equipotential surfaces. In the last lecture, we also saw electrostatic potential energy for a system of two charges. I am about to do a very important illustration today. That is illustration 2.3, I guess. Yes, it is 2.3 in the NCERT 12th standard textbook. In order to do that, an important tip has to be understood here. So allow me to reiterate that I did this tip last time when I was doing JEE lecture number 2. Let me do this again. If you remember, हमने tank और home की बात की थी, and water was flowing naturally from tank to home and stuff. You can go back to JEE NEET lecture number 2 and find that out. I'm going to reiterate the points here. Point A is a point of high potential. Point B is a point of low potential. Here potential is high, here potential is low. Positive charge is moving in the direction of electric field. Now look here, electric field always points, the first point, electric field always points from high potential to low potential. So that is the first important point that we choose out here. Secondly, this positive charge is going from A to B. Let us understand this. When it moves from A to B, a positive charge goes naturally. It will go under the influence of the electric field from point A to point B. So positive charge goes naturally from high potential to a point having low potential. And if you see this, the positive charge is going like this. So it is going in the direction of electric field. Positive charge goes naturally in the direction of the electric field. Thirdly, that's number 4 now. When it goes from high potential to low potential, understand, the work is done by the electric field. It is electric field which is bringing this charge from here to here. We are not involved in any way in bringing the charge from point A to point B. External agency does not do any work. Understand? So fourth point, when positive charge goes from A to B, work is done by the electric field. That is, work done by electric field is positive and work done by external agency will be negative. Finally, when it goes from high potential to low potential, the positive charge gains kinetic energy. So kinetic energy of positive charge increases and potential energy of positive charge decreases. This I am going to use while solving illustration 2.3. If you have not already opened your textbooks, you might as well open your textbooks to illustration 2.3, and I am going to draw the diagram, and there are a couple of questions asked and we'll answer all of them individually. I am taking this off now. So illustration 2.3, what does it say? They have given us two cases. We are going to deal with each case individually. So in the two cases, illustration 2.3, let's talk about case number 1, wherein they have given a positive charge, which is the source of the electric field, and this is how they have drawn the electric field. They have, so you can see electric field is pointing radially outwards. You already know this. They have given us, they have named 2 points. Let me see this. So this is point P and this is point Q. Okay, I'm sure you can see this. This is point P and this is point Q. Now, based on your knowledge, based on the tip that you saw last time, just last board, you can see direction of electric field is pointing outwards. So this is the direction of electric field. Can you tell me which point would be high potential and which would be low?
take some time to think over your answer. Pause the video, give the answer, then restart the video. Okay, if you've already thought out the answer, let me tell you. Here point P is high potential and point Q is low potential. सबसे पहले हम हाई पोटेंशियल कौन सा है, लो पोटेंशियल कौन सा है, वो चेक करेंगे. सो हियर point P is high potential and point Q is लो पोटेंशियल. सबसे पहला फंडा हमने हाई और लो का ले लिया. अब एक एक क्वेश्चन देखेंगे. हम द फर्स्ट क्वेश्चन सेज गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq. वैसे तो दोनों पूछे पर मैं पहला केस ले रहा हूं. Vp माइनस Vq. द फर्स्ट क्वेश्चन Vp माइनस Vq क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? सो now you can see point P is high pot, Q is low pot. So Vp high potential minus low potential. High minus low, आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा. So Vp minus Vq is high minus low. Do you agree? Answer is going to be positive. So Vp minus Vq is positive. ये आपका पहला क्वेश्चन. Secondly, the question is give the sign of the potential energy difference of a small negative charge between Q and P. Between Q and P. So अगर Q से P लाया जाए, just check. एक बात समझिए. Suppose कोई positive charge है and you bring it from low pot to high pot. What will happen? Potential energy घटेगी या बढ़ेगी? Pause the video, think over the answer. If you take a positive charge from low pot to high pot, do you agree you are taking it higher? So potential energy increases. So if we take positive charge, no don't tell me sir negative charge पूछा, मैं भी जानता हूं, पर पहले पॉजिटिव की तो बात कर ले. एक बात याद रखो, सबका रेफरेंस पॉजिटिव चार्ज होता है. एक बार पॉजिटिव के साथ क्या करना है वो पता चल गया, फिर नेगेटिव पे उसको अप्लाई कर सकते हैं. सो इफ यू टेक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q to P, its potential energy increases. So based on this idea, tell me if we take negative charge from Q to P, क्या होगा? Potential energy घटेगी, right? So if we take negative charge, so if we take, मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर सकें. नेगेटिव चार्ज फ्रॉम Q to P, its potential energy will decrease. आपने देखा पॉजिटिव चार्ज की इंक्रीज हो रही थी तो नेगेटिव चार्ज की डिक्रीज हो रही है. सो डिक्रीज का मतलब क्या है? डू यू अग्री? फॉर पॉजिटिव चार्ज दिस इज लो P, दिस इज हाई P. सो पॉजिटिव चार्ज के लिए लो माइनस हाई would have been negative, but for negative charge this is high, this is low. So high minus low, that is high PE minus low PE. क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव. Do you understand this? So its potential energy difference will be positive. ये यहीं से पता चल रहा है, मैं कोई नया फंडा नहीं ला रहा हूं. अगर कोई पॉजिटिव चार्ज लो पॉट से हाई पॉट जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, बराबर है. एंड अगर कोई नेगेटिव चार्ज लो पॉट से हाई पॉट जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी. मतलब सपोज 25 थी, उसमें से 15 हुई, तो हाउ मच इज 25 माइनस 15? घटी ना. 25 माइनस 15, व्हाट इज इट? इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव? इट इज पॉजिटिव. बराबर. इस तरह मैं लॉजिक लगा रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज होता और उसको मैं Q से P ले गया होता. लेट अस से Q इज पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल एंड हाई इज पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल. बराबर. तो घटी या बढ़ी? बढ़ी. सो हाउ मच इज 10 माइनस 15? -5, नेगेटिव.
सॉरी मैं उल्टा जा रहा हूँ, नहीं सही जा रहा हूँ, बराबर परफेक्ट जा रहा हूँ. सो दिस इज हाउ आई एम कैलकुलेटिंग माई आइडिया. 10 पोटेंशियल एनर्जी का फंडा क्या होगा? पॉजिटिव. ऑलराइट. थर्ड क्वेश्चन ये है कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q to P. स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q to P. डू यू अग्री? हम यहाँ पे अगेंस्ट द फील्ड जाएंगे अगर पॉजिटिव चार्ज को Q से P ले जाना है. फील्ड ऐसा है, लेट मी कॉल दिस E bar. Do you agree I am going against the field? So in going, if positive charge goes from Q to P, work has to be done against the electric field. ये हमें ले जाना पड़ेगा, अपने आप नहीं जाएगा. So what is the question? What is the work done by the field? So work done by the field is negative, क्योंकि फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं. अगर फील्ड इस तरफ है और तुम किसी को यहां ले जा रहे हो, डू यू अग्री यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फील्ड. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड? नेगेटिव. व्हाट इज द वर्क डन बाय यू? पॉजिटिव. तुम ले जा रहे हो, तो वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव. एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटिंग नंबर 1? नहीं, हो गया. तो ये था मेरा नंबर 1. एक और बार एक्सप्लेन कर देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां है, फ्रॉम P to Q. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट फ्रॉम हाई पॉट टू लो पॉट. सो कुछ भी हो जाए ऐसे सम में, सबसे पहले हाई पॉट कौन सा है, लो पॉट कौन सा है, वो देख लेना. तो ये हाई है, ये लो है. फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड यू Vp minus Vq. तो Vp minus Vq, high pot minus low pot, high minus low, isn't it a positive number? So the potential difference Vp minus Vq will be positive. Secondly, they tell you if you take negative charge from Q to P, क्या होगा? Okay, अगर पॉजिटिव चार्ज Q से P आता, लो से हाई आता, तो डू यू एग्री पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती? ओके. बट अगर नेगेटिव चार्ज लो से हाई आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पलटी मरवा दिया मैंने, यही बात को लेके पलटी मरवा दिया, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज. सो सपोज यहां पे 10 जूल है और यहां 5 जूल है, तो डिफरेंस क्या पड़ा? 10 माइनस 5 कितना हुआ? पॉजिटिव. सो द आंसर इज पॉजिटिव. फिर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि पॉजिटिव चार्ज को लेके जाया जा रहा है Q से P, फील्ड कितना वर्क करेगा? भाई यहां पे दिख ही रहा है, अगर Q से P आ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज isn't it going against the field, and against the field मतलब work is done by you against the field, so work done by field will be negative. alright, इसी के जैसा है नेक्स्ट नंबर, मतलब नेक्स्ट इसका आइडिया जो है नंबर 2. ऐसा ही कुछ, बट थोड़ा सा चेंज. मैं पूरा ही नया बनाता हूं, बट एकदम सेम टू सेम इसके जैसा ही है, कोई फर्क नहीं. उसमें नेगेटिव चार्ज है, पर हमको उससे क्या लेना देना? फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे हमको क्या लेना देना? हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से लेना देना है. तो आओ देखें जरा. तो ये था नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज में तो आप जानते ही हैं ओके. नेगेटिव चार्ज में 2 पॉइंट्स ए और बी. अब ये उन्होंने नीचे बनाया, आपको चाहिए नीचे बनाओ, कहीं भी बनाओ ना सर, क्या दिक्कत है. ओके, आप जो बोलो, लंबे लंबे एरो. अच्छा, ये पॉइंट है ए एंड ये पॉइंट है बी. भाई कुछ भी करने से पहले अगर आप, if you have a notebook and a pen, I am not going to provide the answer. You draw this diagram in your textbook, pause this video and write down the 2 points A and B, and based on your experience write down which is high pot, which is low pot. Always remember electric field
goes from high pot to low pot. So क्या करोगे? सबसे पहले तो फील्ड बनाएंगे. सर फील्ड कैसा है? फील्ड ऐसा है. हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन बना रहा है फील्ड कैसा. हमको तो फील्ड के डायरेक्शन से फर्क पड़ता है. हमको जैसे फील्ड का डायरेक्शन आ गया ना, दिस कैन वैनिश. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. फील्ड का डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड फील्ड. अब पॉज कर देना वीडियो और लिख लो कौन सा पॉट हाई कौन सा पॉट लो. लिख लिया? पॉज कर दिया? वेरी गुड. अब मैं आंसर देने जा रहा हूं. तो अगर आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मेल खाता है तो बधाई हो. नहीं खाता है तो थोड़ा ध्यान दो, फिर से आ जाएगा अच्छी तरह. डू यू अग्री बी is high and A is low? ये सबसे पहला आइडिया. कौन सा पॉट हाई है, कौन सा पॉट लो है. फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम हाई पॉट टू लो पॉट. तो अगर फील्ड ऐसा जा रहा है तो B इज हाई, A इज लो. फर्स्ट को अच्छा लिख देते हैं यहां पे. हियर पॉइंट A is low pot and point B is high pot. ओके भाई. प्रथम क्वेश्चन है VB माइनस VA क्या होगा? आप बताओ क्या होगा. B क्या है? हाई पॉट. A क्या है? लो पॉट. सो VB माइनस VA हाई पॉट माइनस लो पॉट. भाई हाई माइनस लो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सर पॉजिटिव होता है. भाई वेरी गुड. तो पहला आंसर हमारा आ गया. VB माइनस VA इज पॉजिटिव. सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन A एंड B. वाह 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 वाह. इसका मतलब है A से B तक नेगेटिव चार्ज ले जाना. तो पहले पॉजिटिव तो ले जाए, पहले पता तो चले क्या हो रहा है. मैं अगर पॉजिटिव चार्ज को A से B ले जाता हूं लो से हाई तो क्या होगा? आप मेरे को बताओ. बताओ बताओ. पॉज कर दो वीडियो, लिखो अपने उसमें. इफ वी टेक अ पॉजिटिव चार्ज from A to B, but you are going from low to high, so its potential energy increases. Thus, अब भाई नेगेटिव ले जाना एक्चुअली में. If we take a negative charge from A to B, its potential energy डिक्रीजेस. बहुत बढ़िया. ये तो उसके जैसा ही हो गया. डिक्रीजेस मतलब सपोज ये 100 जूल है और ये 50 जूल है. डिक्रीज हुई पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव की नहीं नेगेटिव की. सो चेंज इन पीई. भाई 100 माइनस 50 हाई माइनस लो. हाई पीई माइनस लो पी. भाई 100 माइनस 50 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? तो मैं पता नहीं, आपसे पूछ रहा हूं. बताओ आप. पॉजिटिव होता है ना? शाबाश मेरे चीते. बरोबर. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो पॉजिटिव. और तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली ये चौथा क्वेश्चन है. गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A. भाई B टू A जाना है. नेगेटिव चार्ज है, याद रखना. B टू A सपोज पॉजिटिव चार्ज होता. मैं इसको उड़ा देता हूं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए. पॉजिटिव चार्ज होता और B टू A जाता. कौन वर्क करता? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता. हमें तो वर्क नहीं करना पड़ता. सो व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन टेकिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B टू A? हमें करना है? नहीं ना. तो वर्क डन इज नेगेटिव. तो अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज मूव ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाना है, डू यू एग्री वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टू टेक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B
मतलब हाई पॉट टू ए लो पॉट, वर्क is done by electric field. Thus, to take negative charge, भाई साहब negative charge from B to A, work is done by external force, by external agency. तो उन्होंने यही पूछा, what is the work done by external agency, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम ही कर रहे हैं. That is, work is positive. Do you agree? हमें ही करना है. So work done will be positive. And finally एक और चौथा क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए. भाई हाई पॉट से लो पॉट ये सब बाकी का उड़ा दो. अगर कोई पॉजिटिव चार्ज जाता है फ्रॉम हाई पॉट टू लो पॉट, सपोज कोई पेन जाती है हाई पॉट से लो पॉट तक, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी. बट ऑफ कोर्स यू नो दैट इफ अ बॉडी गोज फ्रॉम हाई पॉट टू लो पॉट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. सो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, इफ इट गोज फ्रॉम हाई पॉट टू लो पॉट, इट विल इंक्रीज. तो नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? उल्टा. सो if a negative charge goes from high pot to low pot, its kinetic energy will decrease. So यहीं ऊपर लिख दो कहीं पे? नहीं, इसको उड़ा देते हैं, ये वाला उड़ा देता हूं. Fourth, if positive charge goes from B to A ना, B to A मतलब हाई पॉट टू लो पॉट, its kinetic energy increases. So if negative charge goes from B to A, its kinetic energy decreases. Absolutely sir, perfect, कोई शक ही नहीं है बात में. तुम्हारा अगर लॉजिक सही हो तो you can very well try to do these sums. You have to absolutely understand कि ऐसे sums करते टाइम पॉजिटिव चार्ज का क्या आलम होगा, पहले वो जान लो. तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर तुम रिसर्च कर सकते हो, तुम अपना कमेंट दे सकते हो. पर तुम्हें यही नहीं पता कि पॉजिटिव के साथ क्या हो रहा है और तुम नेगेटिव पे कमेंट नहीं दे सकते. सॉरी सर. सो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या हुआ, पानी के साथ क्या होगा वो देख लो. टैंक से घर में आएगा या घर से टैंक में जाएगा, फिर तुम बाकी सारा खेल यहां खेल सकते हो. सो दिस इज हाउ illustration 2.3 goes. Have a look at it. We'll move on now. अब हमको एक नए टॉपिक पे जाना है. This new topic is electrostatic potential energy itself. But लास्ट टाइम जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का देखा था, U is equal to K Q1 Q2 by R. That was if there is no electric field. उस टाइम हमने ये कमेंट किया था कि what if कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो. जैसे अगर आपको याद हो, मैं सिर्फ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट कर रहा हूं. जस्ट अ क्विक रिकैप. दो चार्जेस हुआ करते थे, ये Q1 था, ये Q2 था, और बीच में R12 नाम का डिस्टेंस था. इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या था? U ब्लू में लिखेंगे K Q1 Q2 बाय R12. ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, काफी फेमस एक्सप्रेशन हो गया. कैसे लाए थे? हमने कहा था ये सिस्टम अपने आप नहीं बना, हमने बनाया है. Q1 को इंफिनिटी से लाया गया है, पर Q1 को इंफिनिटी से जब लाए तब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, कुछ नहीं था. तो वर्क डन टू ब्रिंग Q1 लिख देते हैं, वर्क एज देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड. सबसे पहला ये था, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, सो वर्क डन to bring Q1 to
टू पॉइंट ए, इसको पॉइंट ए कहते हैं, इसको पॉइंट बी कहते हैं, टू पॉइंट ए इज 0, तो हमने लिखा था W1 इज 0। फिर Q1 आया था, उसने अपना फील्ड डेवलप किया था, और जब हम Q2 को इंफिनिटी से लाए, वी हैड टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 टू ब्रिंग Q2 to point B. We had to do work against field due to Q1. तो वर्क डन कितना हुआ था, चार्ज कौन सा लाए थे, Q2 इंटू पोटेंशियल, लिख देता हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। Q2 को कहां लाए, बी पे, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1। और ऐसा ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन पे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कितना होता है, के क्यू बाय आर, तो के क्यू वन बाय कितना डिस्टेंस था दोनों के बीच में, R12, तो ये हो गया के क्यू वन क्यू टू बाय R12। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। टोटल वर्क W1 plus W2, and this total work is stored as potential energy, so U is W1 plus W2, which is 0 plus this, which is this। इस तरह एक्सप्रेशन आया था, बहुत मजा आया था, हमने काफी 3 चार्जेस के साथ भी किया था, ब्ला ब्ला ब्ला। बट प्राइम क्वेश्चन ये था कि तब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था। अगर एक्सटर्नल फील्ड होता तो, और हमको कोई चार्ज लाना पड़ता, तो डू यू एग्री, हमें उस फील्ड, ये W1 0 नहीं होता। सपोज कीजिए यहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी है, कोई भी सोर्स से बना हुआ एक्सटर्नल फील्ड है, तो जब Q1 को मैं लाता हूं, आई ब्रिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, you agree W1 is not 0 now, because I have to do work against the field that is here to bring Q1 from infinity to this point. So this, ladies and gentlemen, will be an important idea. W1 shall now no longer be 0. तो what if I do this, पहले सिंगल चार्ज का देखते हैं, फिर दो चार्जेस का देखते हैं, और नया एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। सो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट खत्म हुआ, नया घोड़ी, नया दाव। सो लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सबसे पहले सिंगल चार्ज को लाया जाएगा, देखते हैं किस तरह वर्कआउट होता है। सबसे पहला आइडिया, सिंगल चार्ज। ये सिंगल अच्छा नहीं लग रहा, इट इज नॉट रेडी टू मिंगल। ओके, so my first statement is consider electric field E1, consider external electric field E1, okay, due to any source, due to any source, कोई भी हो सकता है, सिंगल चार्ज भी हो सकता है, या बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज नो लॉन्गर 0। वी नीड टू ब्रिंग, करना क्या है, वी नीड टू ब्रिंग चार्ज Q from infinity to a point P having position vector r bar, let us say, having position vector r bar। तो ये तो लफड़े वाली बात हो गई, अब वर्क तो करना पड़ेगा। अच्छा, when this chapter started, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन किया था। हाउ डिड वी डिफाइन दैट? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट is called, against the electric field, but of course is called electric potential
at that point. तो अगर single unit positive charge के लिए work done is V, how much was the work done for charge Q? Wasn't it QV? You got it? वही potential energy same है. So here work has to be done against this electric field. This work done is going to be stored as potential energy, which is called electrostatic potential energy. So electrostatic potential energy is what? Work done. And work done, isn't it charge Q into electric potential at point P? Single charge, unit positive charge के लिए work is electric potential, but charge के Q के लिए it is Q into electric potential. So this is Q into potential at R bar. So this is my expression for the electric potential energy of a charge Q in the presence of an external field E bar. इसी आइडिया से मैं 1 EV को डिफाइन करने जा रहा हूं. You've seen this in standard 11 जब work energy and power कर रहे थे. We had defined 1 electron volt. What is EV? EV का मतलब होता है electron volt. When an electron is accelerated in a potential difference of 1 volt, then it gains energy which is called 1 electron volt. So the energy gained by an electron in a potential difference, दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा है, तो कितनी एनर्जी उसको मिलेगी? Potential difference of 1 volt is called 1 EV. And I'm sure you know 1 EV is 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. अरे बेचारे 10 raised to minus 19 को मार. 1 EV is 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. बहुत सी जगह TeV यूज होता है. 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो is 10 raised to 3, तो 1.6 into 10 raised to minus 19 into 10 raised to 3 joule. MEV 10 raised to 6, TeV 10 raised to 9. तो इस तरह पूरा वर्कआउट होता है. तो मैं लिख दूं, आप बोलो तो कहीं पे 1 KeV लिख देता हूं. यहां पे रेड में लिखते हैं. 1 KeV is 10 raised to 3 EV. 1 MEV is 10 raised to 6 EV and 1 TeV is 10 raised to 9. टेराबाइट नहीं होता, टेराबाइट. So 1 TeV is 10 raised to 9 EV. So ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. यू नो, फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले कि an electron is accelerated between 2 points having a potential difference of 10 volt. So what is the kinetic energy of this electron? So the kinetic energy is, which is work done, is कितना इलेक्ट्रॉन है? 1. कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 10 वोल्ट. तो 1 into 10, it will be 10 EV. So the electron will have energy 10 EV. So whenever a charge Q, you know, is accelerated between 2 points having potential difference delta V, then the energy gained is Q into delta V. Let me write this here. ये हो गया है. तो I'm writing this as a tip. जेई नीट में वगैरह काफी काम आती है. सो आप इस टिप को बहुत ध्यान से देखें. टिप: इफ अ चार्ज Q is accelerated between 2 points having
potential difference delta V, then the energy gained by the charge is Q delta V. ध्यान से देख लेना, इसी आइडिया पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरा डिफाइन हुआ था. सो अगर मेरे पास चार्ज है 5 कूलम और मैं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रखता हूं 10 वोल्ट, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को भेजता हूं. व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी? 5 कूलम इंटू 10 वोल्ट, 5 इंटू 10. अंडरस्टैंड दैट? ऑलराइट, तो उतनी एनर्जी उस चार्ज को मिलेगी. एनर्जी इज क्यू डेल्टा वी. तो ये तो सिंगल का था, सिंगल चार्ज. बट अगर मैं दो चार्जेस की सिस्टम बनाऊं तो isn't that a very important question? हमने यहां पे तो सिंगल चार्ज लिया है, नो इश्यूज. बट दो चार्ज लाऊं तो बहुत मजा आएगा. स्टे विथ मी, इसको उड़ा देते हैं. वही दो चार्जेस जो हमने पहले Q1 और Q2 लाए थे, सेम टू सेम, बस एक ही चेंज, हम यहां पे एक्सटर्नल फील्ड को भी कंसिडर करेंगे. सो माय नंबर 2, for a system of Q1 and Q2. तो शुरुआत इसी तरह करूंगा मैं. कंसिडर एन एक्सटर्नल. पहले हमारे यहाँ पे जब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया तो कुछ भी नहीं था और हम Q1 को इंफिनिटी से ला रहे थे, तो बिल्कुल वीराना था. ला रहे, कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा था. बट यहाँ पे ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके होने से हमें उसके अगेंस्ट भी काम करना है. कंसिडर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार. श्री गणेशाय नमः हो चुका है. अब बात करेंगे क्या करना है. वी नीड टू ब्रिंग Q1 from infinity to point A, having position vector r1 bar, let us say. क्या करें, क्या करना पड़ेगा अभी आप बताओ. वर्क करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. सो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई कितना वर्क करना पड़ेगा? W1. तो लोग सर इजी पीजी जापानीजी. Q1 इंटू पोटेंशियल. अच्छा मैं लिख दूं पहले कौन सा चार्ज ला रहे. Q1 इंटू पोटेंशियल एट A, एट पॉइंट A, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें किसी और की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. तो Q1 इंटू V एट R1 बार. दिस इज माई वर्क 1. तो Q1 लाए, प्रस्थापित हो गया. ये रहा Q1, ये प्रस्थापित हो गया पॉइंट A पे. खेल खत्म नहीं हुआ. ये लास्ट टाइम जैसा ही अभी किया था उसके पहले. अब Q2 को लाना है और Q2 को लाके यहां सेटल करवाना है. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? R12. अब Q2 को लाने के लिए किस किस के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? कौन कौन है? सबसे पहला तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, वो तो हटने वाला नहीं है. उसके अगेंस्ट तो करना ही पड़ेगा. किसी और के अगेंस्ट? हाँ, Q1 को लाके हमने यहां बिठाया, उसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया. सो हमको उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा. सो टू थिंग्स. वी नाउ ब्रिंग Q2 from infinity to point B, having position vector R2 bar. किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा गुरु? बताओ जी. We have to do work against
पहला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार एंड ऑल्सो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। समझ में आया महाराज? हम जब Q1 को लाए इंफिनिटी से यहां तक, तब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार था, तो मात्र उसके अगेंस्ट काम करना पड़ा हमको। सो वर्क वन, चार्ज Q1 को लाए इनटू पोटेंशियल एट ए ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल लिखना है तो लिख दो, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो Q1 into potential V at position vector R1 बार, पहला वर्क वन। अब Q1 को लाके स्थापित किए, अब Q2 को लाके यहां रखना है, तो Q2 को लाने के लिए किस किस के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? पहला ई बार के अगेंस्ट, एंड दूसरा वी हैव टू आल्सो डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू Q1। Q1 ने भी यहां आके अपना फील्ड डेवलप किया, तो उसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। सो टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B, वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार एंड दूसरा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। तो क्या क्या इक्वेशन होगा? सो वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सिर्फ अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ो तो एक्सटर्नल वाला, तो Q2 into V at R2 bar, and what is the work against electric field due to Q1? भाई इतना उड़ा रहा हूं, जगह की तंगी रहती है, सो ये उड़ा देते हैं। एंड सेकेंडली वर्क, ये एक्सटर्नल लिखना जरूरी है यहां पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये वर्क against electric field due to Q1। अच्छा, कौन सा चार्ज ला रहे हैं? Q2। What is potential at point B? ये सब लिखते रहते हैं हम, ड्यू टू Q1। B पे, इस पॉइंट पे Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? As good as it looks, K Q1 बाय कितना डिस्टेंस है दोनों पॉइंट में? R12। तो क्या फाइनल आंसर आया? K Q1 Q2 बाय 1। तो व्हाट इज टोटल वर्क? सो टोटल वर्क इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी, भाई बताओ, isn't it this plus this? सो ऊपर वाला याद रखना, ये कहीं लिख देते हैं W1, अरे याद रहेगा ना तुमको, याद रखने वाले लोग। अब एक बेचारा बोर्ड कितना बर्दाश्त करेगा। सो टोटल वर्क कितना है? W2। W2 इज Q2, ये रहा Q2 अच्छी तरह से लिखने का, इंटू V एट R2 बार प्लस ये दूजा K Q1 Q2 बार, इसको नंबर 2 का खिताब दिया जाए। Now this work done is equal to total potential energy. This work done is equal to the potential energy of this system, which is, ladies and gentlemen, सावधान, हमको टोटल चाहिए, टोटल। कौन सा टल? टोटल। टोटल मानना तुमको आता ही होगा, U इज W1 प्लस W2। भाई बचपन में W1 देखा था, छोटी चड्डी पहनता था, लॉलीपॉप खाता था, और बड़ा प्यारा लगता था। Q1 इंटू V एट R1 बार, W2 इकड़े Q2 इंटू V एट R2 बार प्लस ये रहा तुम्हारा वही दर्द डिस्को। कितना सोना तेनू रब ने बनाया, रब ने नहीं बनाया, हमने बनाया इसको सोना। बहुत अच्छा लगता है इक्वेशन।
ये है आपका फाइनल इक्वेशन। सो अगर एक्सटर्नल फील्ड की बात चले तो तुमको उसके खिलाफ भी काम करना पड़ेगा। तुमको याद है लास्ट टाइम जब Q1 और Q2 थे और R12 था, तो व्हाट वाज द पोटेंशियल एनर्जी U इज K Q1 Q2 बाय R12, सिर्फ ये था। पर अब ये भी आए हैं, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने कंसिडर किया है। This is possible. This equation works out only if there is an external electric field. So as simple as it looks, let me explain each term again. This is the work done to bring Q1 from infinity to point A, which is at position vector R1 bar, against the external field. So this is Q1 into V at R1 bar. This is the work done in bringing Q2 from infinity to point B, which is at position vector R2 bar against the external electric field. So Q2 into V at R2 bar. And this is the work done in bringing Q2 from infinity to point B against the electric field due to Q1. So K Q1 Q2 by R12. अगर एक्सटर्नल फील्ड ना हो तो सिंपली ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये भी और ये तो है। ऑलराइट, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट आइडिया जिसको यूज करके मैं सम सॉल्व करने वाला हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 2.5 is a very lovely illustration 2.5, but before I do that, let me just मैं इन तीनों टर्म का एक विशिष्ट ब्रेकअप दे दूं आपको। वर्क डन टू ब्रिंग Q1 from infinity to point A against external people. Here external is the word electric field. ये इसको रैड में लिखते हैं, ये रैड। दिस is work done to bring Q2 from infinity to point B against external, ये दोनों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ है। और थर्ड वाला भाई घर वाला ही है, वो घर वाला मतलब अपना ही है। वर्क डन टू ब्रिंग Q2 from infinity to point B against electric field due to अपने बाजू वाले पड़ोसी का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। ऑलराइट, आई थिंक ये तीनों टर्म्स अपने आप में काफी लॉजिकल है। अपने को ये बताते हैं कि क्या क्या कंसिडर करना है, कब करना है और किस सिचुएशन में ये चीज वर्कआउट होगी। तो इसको यूज करके मैं करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 2.5 as they say. So illustration number 2.5 is there. You can take a minute to look at this. I'll be back in 10 seconds. Take a minute, I'll be back in 10 seconds. Okay, so yeah, I'm back. एक्सटर्नल हो गया मस्त एकदम। पहले एक्सटर्नल नहीं था, सब कुछ इंटरनल था। अभी एक्सटर्नल भी है, तो कैसे डील करेंगे सर? सर है, जिंदा है, अलाइव एंड किकिंग एज दिस। सो इस लॉकडाउन में वी आर नॉट डाउन एंड आउट, बोले लॉकडाउन है बट वी आर अप, एंड बिकॉज वी आर अप वी आर डूइंग, एंड इफ वी आर डूइंग मस्त करते हैं। करें तो अच्छा करें, नहीं तो मत करें। इलस्ट्रेशन 2.5 नाम है इसका, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन है। क्या सीन है? 3 क्वेश्चन। पहला, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू फाइंड करना है। 2 चार्जेस है सिस्टम के, एक तो
7 माइक्रो कूलम है। कहां पे है? -900 at -900 सेंटीमीटर। एंड Q2 है, कितना है जी? -2 माइक्रो कूलम। कहां पे है? 900 वाह सेंटीमीटर। भाई सबसे पहले ये दोनों चार्जेस के सिचुएशन में कोई एक्सटर्नल फील्ड है? नहीं है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। तो U इज KQ1 Q2 by R12। ओके, तो सबसे पहले द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज, भाई -900 और 900 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? -9 से 0 तक 9 और 0 से 9 तक 9, तो 9 and 9 is 18 centimeter. So R12 is 18 centimeter, which is 0.18 meter. So in absence, ये जरूरी है लिखना, absence of external electric field, the electrostatic potential energy of this system is U is KQ1 Q2 by, एकदम साफ मामला, K की वैल्यू 9 into 10 raised to 9, Q1 कितना 7 into 10 raised to -6, Q2 -2, और डिस्टेंस कितना साहिबान? कितना? 0.18, मतलब 18 into 10 raised to -2। भाई आपने देख लिया यहाँ माइनस आ गया है, माइनस आ गया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, भूल मत जाना। तो U इज माइनस लगा रहे थे पहले। अच्छा भाई पहले 10 रेज टू को हैंडल करते हैं। 9 - 6 इज 3, 3 - 6 इज -3, एंड -3 + 2 -1 जूल तो है ही है। अच्छा 2 9s are 18 और 9 9 गियो, कितना रह गियो? 7। हाँ हाँ, इतना बड़ा था इतना छोटा हो गया। तो 7 into 10 raised to -1, so U is -0.7 जूल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम की। दूसरा प्रश्न ये है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। भाई एक बात समझो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी एंड Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर प्रेजेंट पोजीशंस। मतलब इंफिनिटी से प्रेजेंट पॉइंट्स तक लाने में आपने इतना वर्क करा है, तो इधर से इंफिनिटी तक जाने में डू यू अग्री उतना ही वर्क नेगेटिव में करना पड़ेगा। सो if your work done to bring charges from infinity to given point is -0.7, then work done to take them back to infinity will be minus of -0.7. So the work required to send the two charges, दोनों भेजो वापस साले, two charges back to infinity is work is minus of electrostatic potential energy of the system। कितनी है साहब? माइनस ऑफ -0.7, विच इज, मतलब इतना वर्क करोगे तो दोनों वापस इंफिनिटी पे चले जाएंगे। ये तो आसान सम है पर खत्म नहीं हुआ है, सी पार्ट है तीसरा, और इस सी पार्ट में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र होने वाला है। एंड सी पार्ट इज द मोस्ट क्रूशियल, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। सी पार्ट क्या कहता है बताता हूं क्या कहता है, पहले मैं उड़ा दूं इसको। लिखना जितना जरूरी है, अच्छा उड़ाना भी उतना ही जरूरी है ना, खाने के बाद साफ करना भी तो जरूरी। ओके, तो सी, यू जस्ट सी कि सपोज दैट देयर इज सम सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस, वही Q1 वही Q2। अच्छा पहले लिख देते हैं वही Q1
कितना था 7 माइक्रो एट -900 सेंटी एंड Q2 -2 माइक्रो, नहीं तो क्या भूल भुला जाते हैं। ओके एंड कहा गया, पेज उड़ गया, हाँ आ गया। एंड नाउ प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई साहब एक्सटर्नल फील्ड दिया गल्ला, ई कितना है a इंटू 1/r², मतलब a बाय r², a की वैल्यू दे रखी है, कोई लोड नहीं है। 9 इंटू 10⁵ गिवन a इज 9 इंटू 10⁵, जरूरत पड़ेगी तब यूज कर लेंगे। एंड टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। याद करें, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डू यू अग्री यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। सो मैं सॉल्यूशन इस तरह शुरू करता हूं that in the presence of external electric field, the total electrostatic potential energy of system is, ध्यान से, U पहला तो Q1 इंटू V एट R1 बार, ये दो चार्ज हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, प्लस Q2 इंटू V एट R2 बार प्लस K Q1 Q2 बाय R12। ध्यान से, खत्म नहीं हुआ है, खत्म कैसे होगा जब तक मैं नहीं करूंगा। Q1 इंटू, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, यू आई एम श्योर यू नो पोटेंशियल डिफरेंस V इज ED, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो E इंटू R, इस तरह ले सकते हैं R1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, A बाय R² इंटू R1 लिखना है तो भी चलेगा, कोई लोड नहीं, प्लस Q2 इंटू A बाय R2² इंटू R2, एंड ये K Q1 Q2 बाय R तो जमा ही है। आपको अंदाजा आया, V इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है A बाय R², तो V एट R1 बार बिकम्स A बाय R1² इंटू R1। या इस तरह, आपको इस तरह मजा नहीं आ रहा तो मैं इस तरह लिखता हूं, E1 इंटू R1, फिर यहाँ पे E2 इंटू R2, और फिर अब आप बोलोगे अब मैं लिखूंगा, चलो लो अब ठीक है, अब तो खुश बहुत हो गए तुम, क्योंकि इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। अच्छा आप तो रेडी हो, ये R1 कटा, ये R2 कटा, भाई तो क्या बचा, Q1 इंटू A बाय R1 प्लस Q2 इंटू A बाय R2 प्लस K Q1 Q2। अब सब्स्टिट्यूशन के अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, तो सबकी वैल्यू डालना शुरू कर दो। तो कितना है वैल्यू, वर्कआउट हो रहा है, रुको 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 एक सेकेंड। Q1 कितना है 7, होता है बेचारी चलती नहीं कभी कभी, 7 माइक्रो कूलम। ए की वैल्यू कहा गया 9 इंटू 10⁵. एंड कितना डिस्टेंस, R1 इज डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम द ओरिजिन, कितना दूर है Q1 ओरिजिन से, 9, डिस्टेंस चाहिए, माइनस माइनस नहीं, तो 9 सेंटी है, तुम लोग सेंटी मत हो जाना, प्लस Q2, सर जी कितना है Q2, -2 माइक्रो कूलम, ओहो हम आगे निकल जाएंगे यहाँ से, 9 इंटू 10⁵, कितना दूर है Q2 ओरिजिन से, 9 सेंटी, फिर से 9 सेंटी। अब ये फाइंड नहीं करना पड़ेगा, ये हमने लास्ट टाइम ही किया था, अभी पहले स्टेप में -0.7 था, याद है, K Q1 Q2 बाय R12 हमने बहुत ही अच्छी तरह लाया था। अच्छा, -6 + 5 -1, -1 + 2 is 1, नौवा नौवा कट, तो दिस बिकम्स 70। फिर से वही, -6 + 5 -1, -1 + 2 is 1, नौवा नौवा कट, तो ये 20 एंड -0.7, 70 - 20 is 50
and 50 minus 0.7 is 49.3. तो पोटेंशियल एनर्जी 49.3 जूल। बहुत ही बढ़िया। वैसे टेक्स्ट बुक में इतना खींचा नहीं है, उन्होंने सटा सट खत्म किया, पर हम तो नहीं कर सकते ना सटा सट खत्म, क्योंकि मैं सटा सट खत्म करूंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा, और तुमको समझ में नहीं आएगा तो तुम चिल्लाओगे, और तुम चिल्लाओगे मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए ये सब मेरे बर्दाश्त करने के लिए कर रहा हूँ। दिस इज हाउ द एंटायर थिंग क्रम्बल्स। सो प्लीज लुक एट दीज सम्स अगेन, एंड ये करते करते आइडिया आना शुरू हो जाएगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो यू नो आई विल वांट द ढक्कन ऑफ दिस। सो इस तरह वर्कआउट करेंगे। अगले लेक्चर में हम बातें करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल की एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स की, जिसके बाद कैपेसिटर्स हमारा मेन विषय रहता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, कैपेसिटर्स, अगले लेक्चर के बाद। तो अगले लेक्चर तक ये काम कर लो। थैंक यू सो मच, हैप्पी सॉल्विंग, बाय बाय।